Very pleasant morning, students. And today I'm going to explain you part of speech. I'll give you brief description about part of speech. And many times I explained you what is part of speech. It's a category that help us to forming a sentence. There are basically 8 part of speech I explained you. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are the part of that we are going to learn. And I explain what is noun also. Noun is a name, person, place or thing. And there are 4-5 types of noun. Proper noun that I have given the example. Rita is a good girl. So Rita becomes proper noun because we are talking about particular person. Rita becomes particular. And if we are saying that states and she is a good teacher, so teacher becomes common noun because it's a name given to common person or place or thing. And now collective noun, it is also called count noun and mass noun also, because we are talking here people. So I'm giving you example: crowd of people, army of soldiers, class is also comes collective noun. So these are herd is also comes under collective noun. So next one is material noun where the raw materials and things are used for the substances, and like silver, gold, iron, wooden. So these are comes under raw material noun. And the next one is abstract noun. Students, abstract noun is I explained you there in the definition of noun, person, place or thing. So we need to understood what is things. Things here we can talk about physical also as well as emotional. So here in abstract noun, students, abstract noun, there is the emotions and feeling we are saying and talking about, and like love, beauty, freedom, these all comes under abstract noun. So here we have finished noun types. There are 5 types. Proper noun relates with the particular words, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. So students, we have finished types of noun. So come to understood how they are using in the sentences. And I will take up one sentence and I will explain 2-3 part of speech together. So I have given here one example. Agra is a beautiful place. So students, I previously also I explained you what is proper noun. So come here. Agra is what? It's a city naming, state name. So Agra becomes proper noun. Here is, students, is what your helping verb. So first we should know the sentence, what types of words are coming. It's become your article. Beautiful becomes your adjective because it modifies nouns and describes the noun. Place here common noun. Why? Because it is not the particular place we are talking. Place could be anything, any place. आप लखनऊ बोल सकते हो, आप महाराष्ट्र बोल सकते हो, आप यूपी बोल सकते हो, कोई भी प्लेस आ सकता है यहाँ पर. सो ये कॉमन नाउन है और ये आगरा प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी स्टेट का हम प्रॉपरली नाम ले रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर स्टेट का, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया स्टूडेंट. सो यहाँ पे हमने नाउन को देखा है. अब बात करते हैं नाउन के प्लेसेस होते हैं. सब्जेक्टिव प्लेस होता है, ऑब्जेक्टिव प्लेस भी होता है. यार आगरा जो है सब्जेक्टिव प्लेस पर है, जो प्लेस है वो कॉमन नाउन है या ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है. सो हियर जो नाउन के 3 प्लेसेस होते हैं, सब्जेक्टिव प्लेस, ऑब्जेक्टिव प्लेस एंड पॉजेसिव प्लेस. पॉजेसिव प्लेस में आप कह सकते हो दिस इज रीतास पेन. तो रीतास पेन मीन्स यहाँ पे रीता का पेन हुआ वो. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नाउन के 3 प्लेसेस होते हैं. वन इज सब्जेक्टिव प्लेस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव प्लेस, थर्ड वन इज पॉजेसिव प्लेस. 3 केसेस ऑफ प्लेस होते हैं यहाँ पर.
ये सब्जेक्टिव प्लेस पर है, ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है। आई हैव गिवन वन अनदर एग्जांपल दैट इज दिस इज रीता's पेन। सो रीता's पेन, रीता का पेन है वो, तो ये पॉजिटिव प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाउन के प्लेसेस भी होते हैं, टाइप्स हमने बताया आपको। अब आते हैं नाउन आपका काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन स्टूडेंट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिस चीज को, जिस पर्सन, प्लेस और थिंग्स को जो भी है हमारे नाउन में, जो भी डिफाइन में आया है, उसे अगर हम काउंट कर लेते हैं तो वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन, द थिंग्स वी कांट काउंट, और नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो ये दो फॉर्म हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। कम टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज योर हेल्पिंग वर्ब। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब स्टूडेंट्स योर एक्शन से रिलेट करता है, किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन से रिलेट करता है, वो वर्ब है। तो वर्ब में हमने आपको बताया है देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। Helping verb students, it's play an important and vital role in tenses and forming many sentences. I taught you in previous class also, like helping verb that help us to form the sentence. That's why the name itself given helping verb. So here there are three types of tenses you have, and each tenses have four types sentence. So here in first is and are we are using basically in present tense. Present tense में हम is and are use करते हैं, present continuous में विल शैल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। बेटा आपको मैंने बताया था विल बेसिकली आज मॉडर्न इंग्लिश में पीपल रेगुलरली यूजिंग विल एंड दे अवॉइड टू यूज शैल। शैल को वो अवॉइड करते हैं, और बेटा है दोनों राइट है। हम शैल वी और आई के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आप विल यूज करते हो। ये एक आप कह सकते हो ट्रिक्स हैं। विल शैल आप दोनों यूज कर सकते हो, आई और वी के साथ भी। और यहाँ या तो आप पहले एनिशियल ग्रामर में आपने देखा है कि शैल बेसिकली हम आई और वी के साथ भी यूज करते हैं। बट बेटा जब कोई भी वर्क इन फ्यूचर वो आपको पता है या डिफाइन होने वाला है, करेक्ट है, जैसे कि आप एग्जांपल दे दो, द स्कूल विल बी ओपनड ऑन, सो स्कूल विल बी, दिस एक्शन इज गोइंग टू बी कमिंग, फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है, तो आप विल लगा सकते हो। किसी भी एक्शन पे आपको प्रेशराइज करना है, यू वांट टू प्रेशराइज योर थॉट्स, सो दे यू कैन यूज विल। और बेसिक आजकल लोग विल ही यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। नेक्स्ट है डू फॉर्म ऑफ वर्ब। डू फॉर्म ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट टेंस, इन क्वेश्चनर एंड नेगेटिव वी आर यूजिंग डू फॉर्म ऑफ वर्ब। डू फॉर्म का वर्ब है कि डज, डू, डिड, दीज ऑल कम्स अंडर डू फॉर्म ऑफ वर्ब। आप इसीलिए कहते हो क्योंकि जो भी वर्ब है वो डू से स्टार्ट होता है। डज हम जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तब डज लगाते हैं, ईएस यस लगा के। और डू यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल में हो तब डू लगाएंगे। डिड हम बेसिकली पास्ट टेंस के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। तो ये हो गया आपका डू फॉर्म ऑफ वर्ब। कम टू द नेक्स्ट वन, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब वन थिंग आई कैन राइट हियर, हैड, पास्ट परफेक्ट के लिए स्टूडेंट्स लगाते हैं हैज एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं। सो ये सारे वर्ब हैं दैट हेल्प अस टू फॉर्म द टेंसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो नेक्स्ट वन इज मेन वर्ब स्टूडेंट्स। मेन वर्ब हियर can write here sentence, she is playing. So student this is playing. Playing is what? It's action. Playing क्या है? ये action है। तो she क्या कर रही है? यहाँ पे खेल रही है। तो खेल क्या है? ये मेन वर्ब है स्टूडेंट्स। ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? दिस इज हेल्पिंग वर्ब। Why this is helping verb? Because it helps the subjects to form the sentence. ये हेल्प कर रहा है किसे? सब्जेक्ट्स को, जिससे कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पे शी इज प्लेइंग हियर इज हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज मेन वर्ब। सो कम टू द नेक्स्ट वन हियर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज व्हाट? ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब दैट वर्ब विथ नो ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में स्टूडेंट जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो, और ट्रांजिटिव वर्ब में जहां पे ऑब्जेक्ट हो। सो इस
टाइप्स को मैं और क्लियर करने के लिए आपको वन मोर एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे शी बॉट हर ग्लास ऑफ वाटर, शी ब्रॉट हर ग्लास ऑफ वाटर। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ब्रॉट या मेन एक्शन मेन वर्ब, हर here indirect object है, glass of water becomes direct object. And now the question arise, what is direct object and indirect object? Because without understanding direct indirect objects we could not understand what exactly transitive verb and intransitive. Direct object वो object होता है बेटा कि जो actions से, जो subject के action से directly affected हो। यहाँ पे जैसे कि she brought her glass of water, so ये जो ब्रॉड है एक्शन जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है किस ऑब्जेक्ट को, ग्लास ऑफ वाटर को, और इनडायरेक्टली किसे अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं हर जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है। कोई भी पर्सन और थिंग्स इनडायरेक्टली अफेक्ट या बेनिफिटेड हो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो